नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। The 12th chapter of the Bhagavad Gita deals with devotion to God along with various forms of spiritual discipline and discusses the marks of devotees. Only 3 verses in this chapter are devoted to a discussion of the discipline of knowledge. That is why this chapter has been given the title of the Yoga of Devotion. The chapter opens with a pertinent question from Arjuna as to which form of worship excel in perfection, the worshipper of God with form and attributes, or the worshipper of the formless and attributeless Brahma. Lord Krishna declares the worshipper of God with form and attributes as superior. The worship of the attribute, formless and attributeless Brahma also leads to God realization, while the worship of the unmanifest is painful and difficult for the embodied souls. Lord Krishna asks Arjuna to choose the path of devotion as he personally comes to the rescue of the devotee who surrenders all actions to him, constantly and exclusively thinks of him. Lord Krishna tells Arjuna to surrender his mind and intellect to him, assuring him that he will thereby realize him. He successively exhorts Arjuna to practice concentration. In the event of his failure to concentrate his mind and intellect, to work as a sacrifice for his sake. If he is unable to work for his sake, to relinquish the fruit of all action. Knowledge is better than constant practice. Meditation is better than knowledge. Renunciation of the fruit of action is better than meditation. It is the best form of discipline as it leads to the attainment of lasting peace. Thereafter, Lord Krishna tells about the marks of his beloved, enlightened and saintly devotees who are dear to him. They are characterized by friendliness and compassion, contentment, self-control and firm faith, working without desire for fruit, clinging to no worldly object, renouncing all initiatives, free from attachment and no fixed abode. Lord Krishna declares those devotees as extremely dear to him who reverently adhere to the life-giving nectar of wisdom and follow his footsteps. 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सगुण साकार के उपासकों को श्रेष्ठ बतलाया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उसकी उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बतलाया है। देहाभिमानी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना कठिन बतलाई है। मुझ पर निर्भर होकर सुख दुखों को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार समझकर अपने आप को मुझे समर्पण कर देना।
मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। अपने इच्छानुसार मुझसे आप समस्त कर्म करवा रहे हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे सर्वस्व है। इस भाव से कर्म करना। अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं। मुझ में सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखकर समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर केवल मुझ में तन्मय होकर नित्य निरंतर मन बुद्धि अर्पण कर देना। फलस्वरूप शीघ्र ही मुझको प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयुक्त होते हैं। यदि तुम मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर स्थापन करने में असमर्थ समझते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा नाम जप, स्तोत्र पाठ, वेदाध्ययन, रूप गुण और लीला आदि में श्रद्धा और प्रेम से बार बार मन लगाकर मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तो उपर्युक्त अभ्यास योग करने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं। केवल मेरे लिए स्वार्थ, ममत्व और आसक्ति आदि को त्याग कर कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। यदि उपर्युक्त प्रकार से मेरे लिए कर्म करने में भी तो असमर्थ है तो कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म कर। समस्त कर्मों में आसक्ति और कामना का अभाव होकर शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। अभ्यास योग में न तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल का त्याग ही है। इसी प्रकार ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है। परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है। अभ्यास और शास्त्र ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। ध्यान योग में समस्त कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना, भगवान को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित हैं। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मलिनता और चंचलता का नाश होता है। ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति नाश नहीं हो जाता तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कर्मफल का त्याग रूप वैराग्य है। कर्मफल का त्याग ही श्रेष्ठ है। जिसका मुझ पर
अहेतुक और अनन्य प्रेम है। मेरे स्वरूप में अटल स्थिति है। मुझसे कभी वियोग नहीं होता। जिसका मन बुद्धि मुझ पर अर्पित है, जिसके जीवन धन प्राण एवं सर्वस्व मैं हूँ, ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय हैं। इस अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक भक्तियों के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष के लक्षणों का वर्णन है। भगवत भक्तों के उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उन ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षणों का आदर्श मानकर श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।